और ये बहुत ही अलग बदलाव है बड़ा। being dead हम मरे हुए थे and being made alive. और हमें जीवित किया गया है। He changed our dead life to a resurrected life. परमेश्वर हमारे मरे हुए जीवन को जिलाए हुए जीवन में परिवर्तित The करता है। same Spirit that rose Jesus from the dead dwells within you. और वही आत्मा जो यीशु मसीह को जिलाई, वही आत्मा हमें भी जिलाती है। Now that's amazing. और ये अद्भुत है। The same Holy Spirit that rose Jesus from the dead और वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया मरे हुए dwells से, within each believer. और वो हमारे अंदर हर एक विश्वासी के अंदर निवास कर रही है। Then He has changed our darkness to light. वो हमारे अंधकार को उजियारे में बदल दिया है। In Colossians 1:13. कलोसियों का 1:13 में लिखा गया है। We were delivered from the kingdom of darkness into the fellowship of light. हमें छुटकारा दिया गया था अंधकार से उजियारे की ओर। How did that happen? ये कैसे हुआ? We were delivered from the clutches of Satan. हम शैतान के हाथों से छुड़ाए गए थे। In America, you in India. मैं अमेरिका में और आप भारत में। Same clutches of Satan. वही जो है पाप के जैसे बंधुआई थी वहाँ पे। God delivered us. और परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिलाया। He says to Satan, He said, they're mine. और उन्होंने कहा जैसे कि वो मेरे हैं। And He took us from Satan's clutches और उन्होंने वो शैतान से उसे ले लिया। and took us into His gentle, strong hand. और उन्होंने वो मजबूत हाथों में अपने ले लिए सारी चीजें। That's amazing. और ये अद्भुत है। Hallelujah. हालेलुया परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया है या नहीं? There are no more in darkness. हम कोई भी अभी अंधकार में नहीं I'm in हैं। the light. और हम जीवित हैं। I'm born again. मैं वापस जीवन पा I'm चुका हूँ। saved. मैं उद्धार पा चुका हूँ। Anybody in here in this room, I guarantee if you had a ticket to London, you get excited about it. और आपके पास अगर लंदन का टिकट होगा तो आप बहुत उत्तेजित हो जाओगे। There's nothing wrong with that. I be getting excited about a free ticket to London. ये गलत होगा कि वो मिला है और मैं उदास बैठा हूँ। But I tell you what, even much better, पर उससे भी बेहतर जो है, as you have a ticket and I have a ticket to heaven. आपके और मेरे पास जो है स्वर्गीय टिकट है। We get a ticket to heaven. हमारे पास स्वर्गीय टिकट है। Now I get a ticket from airlines, it's not guaranteed. और एयरलाइन की जो टिकट रहती है उसकी गारंटी तो नहीं होती है। If we go out of business, it's not guaranteed. और वहाँ पे बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे भी गारंटी नहीं होती है। You know, if the plane does not function okay, it's not guaranteed I'll get to the other अगर वहाँ पे side. हवाई जहाज में कुछ गलती हो गई तो हमें गारंटी नहीं कि हम Your जाएंगे। ticket and my ticket, okay, is guaranteed for heaven. आपकी और मेरी टिकट जो Now स्वर्ग that's में है, वो exciting. गारंटी है। I can go on my job Monday morning, मैं मेरे काम पे सोमवार की सुबह तो जा सकता and हूँ। I got a hope. और मेरे पास आशा है। I got a hope that the world doesn't have. I have a hope that the world doesn't have. और मैं आशा है जैसे संसार के पास नहीं है। Our hope is in Christ. मेरी आशा जो है यीशु मसीह में I है। got a future that the world doesn't have. मेरे पास भविष्य है जो संसार के पास My नहीं है। future is in Christ and it's guaranteed. और मेरा भविष्य जो है यीशु मसीह में है। You've got something to share to people. मेरे पास कुछ है जो मैं दूसरों के साथ बांट सकता हूँ। We have a treasure. हमारे पास खजाना है। God has taken our nothingness and made us complete in Him. और परमेश्वर ने हमारे कुछ नहीं जो था हमारे पास उसमें बहुमूल्य बना दिया है। And then He has taken our fears. उन्होंने हमारे भय को ले लिया है। दूसरी Oh, चीज़, the devil keeps everybody in fear of death. शैतान जो है हमेशा सभी को भय में रखता है, मृत्यु के भय में। During the COVID time, and some unfortunate people, lost loved ones in there और during कोविड के COVID. समय में ऐसे हुआ कि कईयों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। And but He keeps the whole world in fear of death. और वहाँ पे वो भय का जैसे वातावरण छा गया था। There's a lot of anxiety in this world वहाँ पे चिंताएं छा गई थी संसार because of fear. डर के कारण। But He takes our fear पर परमेश्वर हमारे भय को ले and He लेता है gives us a peace that goes beyond understanding. और हमें ऐसी शांति देता है वो जो हमारे समझ के परे है। Like Pastor Chevelle says, fear out, faith in. जैसे पास्टर शिवेली कहते हैं, डर को बाहर निकालो, विश्वास को अंदर Fill our डालो। lives with faith. जब हमारे जीवन में विश्वास है, Some might be builders in this room. Some might be builders in this room. यहाँ पर विश्वास ही है यहाँ पे। And when you build a brick house, और यहाँ पर कोई
घर You बनाते build हैं, it brick by brick. आप ईंटों को डाल के उस घर को बनाते हैं। And that's what we are doing here. We are building our faith, और our वही चीज spiritual हम यहाँ house. पर कर रहे हैं, हम विश्वास से ईंट डाल के हमारे विश्वास की हम घर बांध रहे हैं। Hopefully one of these Bible verses, okay, spoke to you. मैं आशा करता हूँ ये बाइबल की वचनों ने आपसे बातें की होंगी That my faith and your faith has increased. और हमारा और आपका विश्वास जो है बढ़े। Faith cometh by hearing, hearing the word of God. विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। What we feed grows. और जो हम खिलाते हैं वो बढ़ता है। You men and you ladies that have worked hard all week, और जो स्त्री हो या पुरुष हो जो हर हफ्ता काम करते हैं, you come into this meeting as a haven, और यहाँ पर आप इस संगति में आते हो, a place for rest and refreshment ये and संगति जो है nutrition. यहाँ पर आपको प्रोत्साहन मिलता है, उत्तेजन मिलती है और We बहुत सारी get this खुशी through मिलता the है। word. We get this through the word. यहाँ पर हमें वचन के द्वारा ये सारी चीजें मिलती है। We get it through fellowship. हम संगति के द्वारा हम इसे प्राप्त करते We are हैं। encouraged by the mutual faith of others. हम एक दूसरे के विश्वास से प्रोत्साहित होते हैं। So we exchange, okay, our fears for peace. हम हमारे डर को शांति से लेन-देन करते हैं। When I'm telling people about Christ, I always say, when Christ comes in your life, you will have a peace that will go beyond understanding. और मैं लोगों से जब मिलता हूँ तो मैं बात करता हूँ कि यीशु मसीह आपके डर को लेगा और आपको शांति देगा और वो शांति ऐसी होगी जो आपकी समझ के परे होगी। Did you ever feel defeated in life? क्या आप कभी अपने जीवन में नाकामयाब या हारे हुए महसूस किया है? क्या आपने ऐसे Anybody? महसूस किया है? Yeah. I get a little confused. This is supposed to be yes, and this is no. मैं गड़बड़ में रहता हूँ, आप ऐसे कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं? But I think you're trying to speak American head to me. मैं सोच रहा हूँ अमेरिका में जैसे बातें होती है वैसे आप शायद से I बात कर think रहे when हो। you go like this, and they mean yes, right? आपका इस तरह से सर हिलाने का मतलब हाँ है। We've all felt defeated. और हम सभी लोग कहीं न कहीं नाकामयाब होते हैं। But he turns our defeat into victory. हमारे हार को परमेश्वर जीत में बदल देता है। There's a wonderful scripture in 2 Corinthians 2:14. दूसरे कोरिन्थियों के 2:14 में बहुत ही सुंदर वचन है। God always causes us to triumph in Christ Jesus. यीशु मसीह हमेशा मसीह में हमें विजयी कहलाता है। The real key is in Christ Jesus. हमारे पास चुंगी जो है उसकी वो है यीशु मसीह के अंदर ही। In myself, I don't triumph always. और मेरे अंदर में मैं कोशिश नहीं कर सकता हूँ। But in Christ Jesus, I always triumph. पर यीशु मसीह में हमेशा विजयी कहलाऊंगा। Even if I look to be, was Jesus Christ defeated on the cross? अगर मैं देखूं कि यीशु मसीह ने वहाँ पे क्रूस पे हरा दिया है, I gotta hear an answer here. मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। Was he defeated on the cross? क्या यीशु मसीह उस क्रूस पे हार गया था? No. नहीं। See, he's speaking Indian head to me. वो वहाँ पे भारतीय की तरह बात कर रहे हैं मेरे से। No, I think you're speaking American head. He wasn't defeated on the हाँ, cross. यीशु मसीह उस क्रूस पे हारे नहीं थे। He wasn't. वो नहीं हारे थे। He looked defeated. वो दिख रहे थे हारे He हुए। looked weak. वो कमजोर दिखाई दे रहे थे। All of his bones were showing. और उनकी हड्डियाँ भी दिखाई दे रही थी। He could barely talk. वो कुछ बात ही नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे। Looked defeated. वो हारे हुए नजर आ रहे थे। But he was never defeated. पर सच में वो कभी Never भी हारे defeated. नहीं थे, कभी भी नहीं हारे थे। You and I may look defeated. आप और मैं हारे हुए दिखाई तो देंगे, But in Christ Jesus, we are never पर defeated. यीशु मसीह में हम कभी भी हारे हुए नहीं हैं। Always remember, positionally, you are in Christ Jesus. हमारे स्थान को याद रखिए कि हम हमेशा यीशु मसीह में बैठे हुए हैं। But by our experience, पर हमारे ज्ञान के हिसाब से या I'm अनुभव के in हिसाब Christ से Jesus by professing the promise, confessing the promise of God, परमेश्वर के वादों को अंगीकार करता हूँ तब वो हो रहा है। walking in the Spirit and walking in the promises. परमेश्वर की आत्मा में चलना और परमेश्वर के वादों में चलने से होता है। God always
causes me to triumph परमेश्वर हमेशा मुझे जीत दिलाता है in Him. उनके द्वारा। Yeah, हाँ, and we can count on that. और हम उस पे भरोसा रख सकते That's हैं। a board that we can walk on. और वो नाव है जिस पर हम चल सकते हैं। That's a board we can put our full weight on. वो नाव है जिस पर हम हमारा पूरा वजन It डाल will सकते never हैं। break. वो कभी भी टूटेगी नहीं। Not one of God's promises will ever fall into the ground. परमेश्वर के वादे कभी भी टलेंगे नहीं, Not one. एक भी And नहीं। all of His promises are yea and amen, and they're for you. और परमेश्वर के वादे हाँ है और आमेन है, वो आपके लिए है। Pick up the promises of God and stand on it. परमेश्वर के वादों को अपने हाथों में लेके खड़े होकर उस पे खड़े रहो। That's when the Bible becomes real. और वो होगा समय जब बाइबल आपके लिए जीवित हो जाएगी। There's been great minds who said the one thing I love about Christianity और एक कहा गया था जैसे एक चीज में मसीही लोगों के बारे में अच्छी लगती is है that it works. It works. और वो काम करती है, It functions. कि वो कार्यरत है, It's not just a philosophy. सिर्फ यूं ही किताबों में लिखी हुई It नहीं है। really works. मसीहत जो है काम करती है। Like if I'm sad जब मैं दुखी होता हूँ and I ask Jesus, I want to give you my sadness and you give me your joy. और मैं जब यीशु मसीह को कहता हूँ कि मैं मेरी उदासी पर हूँ, मेरा दुख आपको देता हूँ, तो Fill me परमेश्वर with आनंद your में Holy बदलता है Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा, and that will happen. It will और वो happen. होगा। Maybe not in our time, but it will happen. हर जैसे उस क्षण में नहीं पर होगा। That man that cannot talk, that man, okay, that cannot hold his head up, that man, okay, that cannot walk, और वो मनुष्य जो चल नहीं पा रहा है, उसका सर ऊपर नहीं उठा पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, he's filled with God's joy. वो परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ है। Now, the one we exchange our death for his life. हम उसकी मृत्यु को हमारे जीवन में बदल देते हैं। And then lastly, we exchange our works for his grace. और आखिर में उसके कार्यों को हम अनुग्रह में बदल लेते हैं, जैसे कि Before salvation in religion, we do all of our works. और धर्म में जैसे कि उद्धार पाने से पहले हम सारे कर्म करते रहते हैं, What I do for God. जो मैं परमेश्वर के नाम से And करता I'm हूँ। going to work. और मैं काम परमेश्वर के नाम के हिसाब से करते रहते हैं। And maybe God will be happy with me. और सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे खुश होगा। But when the goodness of God and the grace of God appeared, जब परमेश्वर की भलाई और उसका अनुग्रह हमारे सामने आया, we knew it's not by works of righteousness, but by His mercy we are saved and washed. और हम जान पाए जब वो सामने आया, उसकी भलाई और उसके अनुग्रह को देखा हमने, तो कार्य से नहीं पर उसके अनुग्रह से हम उद्धार पाते हैं। Titus 3:5. तीतुस का 3:5 में You लिखा can है। jot that down. आप लिखिए उसको, Tomorrow you can read it. आप कल उसे पढ़ सकते हैं। Once again, He will present you without wrinkle and without spot. परमेश्वर आपको सामने रखेगा प्रभु पिता के बिना एक दाग And He will present you perfect. वो सिद्ध आपको सामने खड़ा करेंगे। Yes. So we exchange the old for the new. हम बदलाव करते हैं, लेन-देन करते हैं पुराने और नए के लिए। And when we believe in Christ, He made us a new creation. हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें नया बनाया है, नई रचनाएं हैं हम। Old things are passed away. पुरानी सारी चीजें ढल चुकी है All things have become brand new. और सारी चीजें नई होंगी। And you can go through the Bible and you can find other exchanges. और आप बाइबल के में ढूंढ सकते हैं और कौन से लेन-देन हुए हैं वहाँ पे करके। You can write your own sermon. आप खुद का एक संदेश बना सकते हो। I bet Anaya could do that. She could preach it to Nahum. Woman preacher. Okay. So Lord Jesus, thank you for this precious church here. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए। Thank you, Lord. They have ears to hear your grafted word. और यहाँ पर वो है प्रभु वचन सुनने के लिए। They're like branches plucked out of the fire. और वो जो टहनियाँ हैं जो आग में डाली जाएंगी। Thank you, Jesus, for plucking us all
यीशु मसीह में। आमीन। Krishna Pastor Edka और वो जब संदेश था कि पुराने जीवन के बदले में हमें नया जीवन मिला, दुख के बदले में हमें खुशी मिली थी, और क्या था कौन बोलेगा और क्या एक्शन के बारे में बात करें। बीमारी के बदले में हमें चंगाई मिला, ये पहला पत्रस का 2:24 के हिसाब से कि उसकी कोड़े से हम चंगे हो गए। और दूसरा अच्छा लगा कि हम विजेता से भी बढ़कर हम विजेता,
हम यीशु मसीह में विजेता है, हारे हुए लोग डिफीटेड नहीं होंगे। हम यीशु मसीह में विजय पाया है, हम लोग विजेता है। कभी कभी लोग शिकारी होकर जीते, विक्टम बोलते हैं इंग्लिश में, विक्टम की जैसे जीते, विक्टम है हम इसके शिकार है, इस परिस्थिति की शिकार है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या विक्टम नहीं बनाया, हमें विक्टोरियस बनाया। हम यीशु मसीह में विजेता, लेकिन हम लोग सब यीशु मसीह में विजेता है। परिस्थिति हमको बताती है कि तुम हारे हुए हो गए ना, परिस्थिति कमज़ोर है। जैसे यीशु मसीह क्रॉस पे कमज़ोर दिखाई दे रहा था, मैसेज में हम लोग सुना यीशु मसीह कमज़ोर दिखाई दे रहा था, लेकिन वो हारा नहीं, वो जीता हुआ यीशु मसीह है। वैसे हम भी कभी कभी थक जाते हैं इस दुनिया में, कमज़ोर हो जाते हैं परिस्थिति के अनुसार, दुख आ जाता है, लेकिन हम हारे हुए लोग नहीं, हम विजेता हैं, हमारे पास विजेता है, ठीक है ना, विक्टोरियस है। तो वैसे जीना है रोज, विक्टोरियस जीना है, विजेता के अनुसार। हम विजेता से भी बढ़कर ना, विजय से बढ़कर क्या होता है, ये विजय नहीं, हम विजेता से बढ़कर है, मोर देन कॉन्करर होता है, मोर देन कॉन्करर। तो धन्यवाद, आप आए और सब लोग माँ यहाँ पे जितने भी यहाँ पे माँ हैं सभी का क्या बोलते हैं, हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के। आप जो भी परमेश्वर का वचन जो है बच्चों में डालते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाना देते हैं हम लोग बच्चों को, लेकिन खाना से भी ज़्यादा बच्चों को क्या जरूरी है, स्वर्ग की रोटी, स्वर्ग की रोटी। कभी कभी माँ जो है चपाती के बारे में ज़्यादा सोचती है, चपाती बना के देना है, भाकरी बना के देना है, रोटला सब्जी बना के देना है, बच्चों को भूख लगी है। सबसे महत्वपूर्ण बात मानसिक क्या है, स्वर्ग की रोटी, यीशु मसीह का जीवन देना जरूरी है। और आप देते रहेंगे, आप लोग देते रहेंगे शायद, ठीक है ना। तो चपाती से बढ़कर स्वर्ग की रोटी, चपाती तो चाहिए, तो हम सब भूखे रह जाएंगे, ठीक है, लेकिन परमेश्वर की रोटी भी बहुत आवश्यक है। तो आप लोग जो कर रहे हैं, तो इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि मिशनरीज, कितने सारे मिशनरीज जो हैं, क्यों? क्योंकि माँ ने सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया ना। हडसन टेलर हो गया, बहुत सारे ऐसे विषय है कि पैसे क्या भी हो गया, उनके माँ ने प्रार्थना किया और वो मिशनरी बन गई मुंबई में। तो सब लोग सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में कि वो एक दिन अच्छे सेवक बने यीशु मसीह में। तो सभी को बधाई, जितने भी मदर्स हैं यहाँ पे, बने रहो विश्वास में, प्रार्थना करो अपने बच्चों के लिए। अगर अभी तक वो विश्वास में नहीं है, उनके लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, ठीक है। तो आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इस अवसर के लिए, इस दिन के लिए, धन्यवाद देते पास्टर फ्रेड के लिए, लिया के लिए प्रभु, उनके फैमिलीज के लिए, उनके डॉटर के लिए, ओलिविया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पूरा फैमिली जो वहाँ पे रहते हैं, उनको ब्लेस करना, आशीषित करना, सुरक्षित रखना, उनके आगे के यात्राओं को भी संभालना प्रभु। जो कल बैंगलोर जा रहे हैं, फिर बाद में कॉन्फ्रेंस के वापस आएंगे, सारी यात्राओं में उनकी सुरक्षा करना प्रभु, उन्हें मदद करना, पूरी बुद्धि देना प्रभु। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, माँ हैं यहाँ पे, उन सभी को भी बुद्धि देना प्रभु, ताकत देना, हिम्मत देना, और तेरे विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु हौसला देना प्रभु, तेरे वचन में कायम रहने के, वचन पर भरोसा करने के लिए कि वचन वो जो बोर्ड है वो कभी टूटता नहीं है, वो एक बार टूट जाएगा वजन की वजह से, लेकिन हमारा वचन अगर वचन में है वो टूटेगा। वचन कायम है, निरंतर है, अनंत है, और वो कभी धोखा नहीं देता है, तीर है, और उस पर हम जब खड़े रहते हैं उन वादों पर, तो हमेशा परमेश्वर जो है वादा पूरा करेगा। तो परमेश्वर हम सभी को आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।